पढ़ाई है उसको जारी रखेंगे, उद्धार और उसके साथ जो 36 आशीषें हैं। Today we are going to study three blessings which are very, very familiar words for us. आज हम 3 आशीषों के बारे में सीखेंगे जो एकदम सुपरिचित है। They are faith, hope, and love. वो है विश्वास, आशा और प्रेम। We get these words together in 1 Corinthians chapter 13, verse 13. ये तीनों शब्द एक साथ हमको पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय के 13वें आयत में मिलता है। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। Faith, hope, and love. विश्वास, आशा और प्रेम। When we look into the word of God, the word faith, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, ये शब्द विश्वास, faith is used in various ways. विश्वास को कई सारे रीति से इस्तेमाल किया गया है। First one is intellectual faith. पहला है बुद्धि Bhautik. बौद्धिक विश्वास या ज्ञान का विश्वास। For example, in order to live in this world, we need this kind of faith. उदाहरण के लिए इस संसार में जीने के लिए हमें इस प्रकार का विश्वास की जरूरत है। When you sit in a train, you have faith. आप ट्रेन में बैठते हैं, आपको विश्वास है। According to the timetable, after 6 or 7 hours, this train will take you from here to Bombay. और टाइम टेबल के हिसाब से 6-7 घंटे के बाद ये ट्रेन आपको बॉम्बे पहुंचा देगा। So you will inform people accordingly. तो आप लोगों को उस प्रकार से बता देंगे। So we exercise this kind of intellectual faith in every area of our life. तो हम ऐसे बौद्धिक विश्वास जीवन के हर एक क्षेत्रों में इस्तेमाल करते हैं या पाते हैं। So in order to believe in the Lord Jesus Christ, first you should have intellectual faith. तो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए सबसे पहले आपको ये बौद्धिक विश्वास होना चाहिए या ज्ञान का विश्वास होना चाहिए। Who is Jesus Christ? Who is Jesus Christ? यीशु मसीह कौन है? Why I need him? मुझे उसकी क्यों जरूरत है? What this Christ can do for me? ये मसीह मेरे लिए क्या कर सकता है? And in detail you have to believe. और आपको विस्तार में विश्वास करने की जरूरत है। विस्तार से ये सब विश्वास करना। Yeah, uncle, give me a minute, uncle. I'm having some audio issue. Can you give me a minute, please? Yeah, please. Yeah, we can continue. So before trusting in the Lord as Savior, you need to know who this Christ is. यीशु मसीह पर उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये मसीह कौन है। 6 things all Christians believe about Christ. 6 बात मसीह के बारे में सारे मसीह विश्वास करते हैं। Jesus came here into this world. यीशु मसीह संसार में आए, lived a holy life, पवित्र जीवन बिताए, and he died for sinners, पापियों के लिए मरा, resurrected, जी उठे, went back to heaven. स्वर्ग वापस चले गए। One day he is coming back. एक दिन वो वापस आने वाले। A person who reads the Bible, the 4 Gospels without any reservation will believe these things. जो मनुष्य चारों सुसमाचार को बिना कोई पूर्व विचार के साथ पढ़ता है, वो इन 6 बातों को विश्वास करेगा। But these 6 things by itself cannot save a person. लेकिन ये सिर्फ 6 बातें अपने आप में एक मनुष्य को बचा नहीं सकता है। We read in Ephesians chapter 1 verse 13. इफिसियों 1 के 13 में हम पढ़ते हैं,
How the Ephesians came to faith, believed in Christ. इफिसियों कैसे विश्वास में आए? वो मसीह पर विश्वास किए। So Paul tells them, you heard the gospel, verse 13. 13वां आयत, After you heard the word of truth, the gospel of your salvation, you have put your trust in him, then you got saved. और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, तब तुम्हारा उद्धार हुआ। Okay, a person has to hear the word of truth, the gospel of salvation, then trusting in the Lord, that leads to salvation. एक मनुष्य को पहले उद्धार का जो सुसमाचार है वो सुनना है, और फिर उस सुसमाचार पर विश्वास करना है। This is a truth repeatedly mentioned in other places also. और ये जो सच्चाई है अन्य स्थानों पर भी लिखा गया है। Romans chapter 10 verse 13 onwards we read the same truth. रोमी 10 का 13 में हम इसी सच्चाई को पढ़ते हैं। And by the preaching of the gospel, after hearing, people receive Christ as their savior, thus they get this salvation. सुसमाचार के सेवकाई के बाद लोग उसको सुनते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, और फिर उनका उद्धार होता है। So that is called a saving faith. और ये बचाने वाला विश्वास। Intellectual faith is needed until we get saved. ये बौद्धिक विश्वास जो है जब तक हमारा उद्धार नहीं हो जाता तब तक जरूरत है। It's a growing faith. और ये बढ़ोतरी वाला विश्वास है। The more we understand about Christ, the more we believe. मसीह के बारे में जितना हम ज्यादा समझते हैं उतना ज्यादा हम विश्वास करते हैं। Then saving faith is a crisis. It cannot be done again, or it cannot be improved or extended. और बचाने वाला जो विश्वास है ये दोबारा नहीं हो सकता है, उसको खींचा नहीं जा सकता है। It instantly happens. The moment you believe, you get saved. और वो तुरंत होता है, जिस क्षण आप विश्वास करते हैं तत्क्षण आपका उद्धार होता है। And in that moment, you get 100% salvation. और उस क्षण आपको 100% उद्धार मिलता है। So nobody can say, I am saved 30% or 90%. Either that person is saved 100% or not saved at all. कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 30% उद्धार पाया हूं, 90% उद्धार पाया हूं। या तो वो उद्धार पाया है या नहीं पाया है। Then there is the third, practical faith or living faith. और तीसरा जो विश्वास है वो है व्यवहारिक विश्वास या जीविता विश्वास। We'll read one verse, 2 Corinthians 5:7. हम एक आयत को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। Or we walk by faith, not by sight. हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। So this faith is given as a gift. और ये जो विश्वास है दान के रूप में दिया गया है। The moment you accepted Christ, God gave this faith to live your life, rest of your life in this world. जिस क्षण आपने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसी क्षण प्रभु ने यह विश्वास आपको दिया है पूरे जीवन काल के लिए। That faith is mentioned in Hebrews chapter 11. और ये जो विश्वास है इब्रानियों 11वें अध्याय में लिखा गया है। That is practical faith, living faith. और ये व्यवहारिक या जीविता विश्वास है। When people followed the Lord, जब लोग प्रभु के पीछे चलते थे, at the different stages of life, different situations of life, how they exercise this faith. जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में, जीवन के आगे अलग अवस्था में वो कैसे इस विश्वास को व्यवहारिक रूप से लाते हैं। When they were not able to see anything, everything looked so dark and cloudy, they trusted in the Lord.
जब उनको आगे कुछ भी न दिखता था, सब कुछ अंधेरा या घना बादल छाया हुआ ऐसा दिखता है, तब वो प्रभु में विश्वास रखते हैं। This faith we need throughout our Christian life. और ये विश्वास हमें पूरे मसीह जीवन में चाहिए। So what I said, three things: intellectual faith, we need तीन it; growing faith, we need it until we get saved. मैंने तीन विश्वास के बारे में आपको बताया। पहला है बौद्धिक विश्वास, जो हमको उद्धार पाने तक चाहिए, और For ये example, बढ़ोतरी का विश्वास है। child which grows up in a Christian home, एक बच्चा जो मसीही परिवार में बड़ा होता है, slowly he will understand who Christ is. धीमे से उसको समझ में आ जाएगा मसीह कौन है। Then there comes a time he accepts Christ as his savior. और फिर एक समय आता है जब वह मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है। So that faith cannot be repeated. It's once and for all faith. और वो जो विश्वास है दोहराया नहीं जा सकता है, वो हमेशा के लिए एक बार होता है। But the third one, practical faith, लेकिन व्यवहारिक विश्वास, जो तीसरा विश्वास है, it will start at the time of your salvation and it will be there until you finish your life here. ये आपके उद्धार के क्षण से शुरू होता है और तब तक रहेगा जब तक आपका इस जीवन का जो समय काल है वो पूरा नहीं हो जाता। So for salvation, all believers exercise the same faith, but afterwards we don't live the same faith. There is more faith in some people, there are less faith in some people. विश्वास के लिए, उद्धार के लिए जो विश्वास है वो सबों का बराबर है, लेकिन उद्धार के बाद का जो विश्वास है उसमें फर्क है। व्यवहारिक विश्वास कुछ लोगों में वो ज्यादा है, कुछ लोगों में कम है। Every day's life we have to exercise this faith in God. हर जीवन के हर दिवस में ये विश्वास हमको मसीह में दिखाना है। And we think about the great people of God who truly believed and exercised this faith in God. हम वो मसीह के बड़े लोग, प्रभु के बड़े लोगों के बारे में विचार करते हैं जिन्होंने ये विश्वास दिखाया, बड़ा विश्वास। I have mentioned earlier about George Muller, that great man of God who ran an orphanage. मैंने जॉर्ज मुलर के बारे में बताया हुआ है पहले भी। वो परमेश्वर का एक बड़ा दास जो अनाथालय चलाता था, Taken care of thousands of orphan children. और हजारों अनाथ बच्चों का ख्याल रखते थे। There happened one day there was nothing in the orphanage. एक समय ऐसा हुआ कि अनाथालय में कुछ भी नहीं था। And the previous night the warden came to George Muller and said, there is nothing for the breakfast tomorrow. पिछले रात को, पूर्व रात्रि को, जो अनाथालय का वार्डन है वो आकर के भाई जॉर्ज मुलर को बताए कि कल के सुबह के नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं है अनाथालय में। So George Muller, it was his practice to have a breakfast with the children every day. और जॉर्ज मुलर का ये रीति था कि हर दिन सुबह का नाश्ता वो बच्चों के साथ किया करते थे। So he went there. वो वहां गए, They rang the bell. वो घंटी बजाए। All the children came and collected their plate and came and sat. सारे बच्चों ने अपना अपना प्लेट उठाया और आकर के बैठ गए। There is nothing in the orphanage. याद रखिएगा, अनाथालय में कुछ भी नहीं है। So George Muller prayed like this. जॉर्ज मुलर ने इस प्रकार से प्रार्थना किया, Oh, thank you for what you are going to give us this day. हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के दिन आप जो हमें देने वाले हैं। As soon as he finished the prayer, there was a knock on the door. जैसे ही उन्होंने प्रार्थना को समाप्त किया, दरवाजे पर एक खटखटाहट हुआ। One company which was distributing, selling bread, had a breakdown in front of their orphanage. They brought all the bread to the orphanage. और एक ऐसा कंपनी जो रोटी बनाती थी, पाव बनाती थी, उनका गाड़ी जो है उस अनाथालय के
सामने ही टूट फूट गया, तो उस गाड़ी वाले ने क्या किया, वो पूरा ब्रेड को उठा करके, पाव को उठा करके अनाथालय में लेके आ गया। Immediately following that, another milk van had a similar problem. ठीक उसके पीछे एक दूध वाहन को भी ठीक उसी प्रकार का समस्या हुआ। Finally, instead of getting the milk spoiled, the company said, "Okay, give to the George Muller's orphanage." आखिरकार कंपनी वालों ने कहा कि ये दूध खराब करने से अच्छा है जॉर्ज मुलर के अनाथालय को दे दो। Think about the faith of that man. उस मनुष्य के विश्वास के बारे में सोचिए। We have a beautiful example in the Gospels about Peter going for fishing. सुसमाचार में एक बहुत अच्छा उदाहरण है पतरस के बारे में, जब वो मच्छी पकड़ने जाता है। He didn't have money to pay the tax. Jesus also didn't have money to pay the tax. उसके पास पैसा नहीं था कर चुकाने के लिए, ना ही यीशु मसीह के पास था कर चुकाने का पैसा। So Jesus told him, "You go to the sea and cast the hook, and the first fish, it will be there. You will get the exact amount." और यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू नदी में जा और कांटा डाल, और तुमको जो मछली, पहला मछली जो पकड़ेगा उसके मुंह से तुमको जितना कर चुकाने के लिए चाहिए वो मिल जाएगा। There we see the faith of Peter. वहां हम पतरस के विश्वास को पाते हैं। He was ready to go and do that. वो तैयार था ये करने के लिए। At the same time, we see the power of Christ and knowledge of Christ. उसी समय हम मसीही के शक्ति को और मसीह के ज्ञान को देखते हैं। He is able to bring the right fish in the right place in the right time with the right amount. वो सही मच्छी को सही समय पर, सही स्थान पर, सही कर के साथ ला सकता था। When we meet people and when we get their support and help, we need to understand how God make arrangements for us. जब हम लोगों से मिलते हैं और उनसे हमको मदद मिलता है, तो हमें ये याद रखना है कि कैसे परमेश्वर उसका व्यवस्था हमारे लिए करता है। So that should encourage us to have more faith in God. और ये हमें उत्तेजित करना चाहिए कि हमारा विश्वास प्रभु में और बढ़ जाए। Probably the greatest example in the Bible is the story of Elijah. और बाइबल में सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो एलिय्याह का है। So he was asked to go and hide in Kerith. उसको ये आज्ञा दिया गया कि केरित में जाकर के छुप जाए। Then God said, "I have asked the commander the crow to feed you." और प्रभु ने कहा कि मैंने कौओं को आज्ञा दिया है कि वो तुम्हें खिलाए। And we read that for a long time, Elijah hid himself in the brook, Kerith, and God fed him through the crow. और हम जानते हैं कि बहुत समय तक एलीशा अपने आप को वहां पर नाले के पास में छुपा करके रखा, और प्रभु ने उसको कौवे के द्वारा खिलाया। Trusting in the Lord for his everyday need. अपने हर दिन के जरूरत के लिए प्रभु पर विश्वास किया। Look at the disciples. जो प्रभु के शिष्य थे उनको देखिए। Jesus was leaving, Jesus gave them a big responsibility of going to all the world and preaching. यीशु मसीह जा रहे थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी उनको दी कि सारे संसार में जाओ और प्रचार करो। But Jesus did not say anything about their expense. लेकिन यीशु मसीह ने उनके खर्च के बारे में कुछ भी नहीं बताया। But that work is continuing even today. लेकिन वो काम आज भी जारी है। And even today also people trust in the Lord and God proves his faithfulness and people go for his work. आज भी लोग प्रभु के कार्य में लगे हैं और प्रभु अपने विश्वास योग्यता को दिखाता है और लोग उनके काम में आगे बढ़ रहे हैं। So practical faith is very important in our Christian life. व्यावहारिक विश्वास हमारे मसीही जीवन में बहुत जरूरी है। We have to trust in the promises of God. हमको मसीह के वायदाओं पर विश्वास करना है। We should trust in the greatness of God.
हमको मसीह के परमेश्वर के महानता में विश्वास करना है। You have to trust in the faithfulness of God. आपको परमेश्वर के विश्वास योग्यता में विश्वास करना है। That's why a lot of people's experiences are mentioned, given in the Bible. और इसलिए बहुत सारे लोगों का जो अनुभव है बाइबल में दिया गया है। God says that you read this, then you also do the same thing. God will remain faithful to you. प्रभु कहता है कि तुम इसको पढ़ो, तुम भी यही करो और प्रभु विश्वास योग्य रहेगा। So this faith we receive at the time of salvation as a gift. और ये जो विश्वास है हमको उद्धार के समय में दान के रूप में प्रदान होता है। To live here in this world, rest of our life, trusting in the Lord. इस संसार में बाकी बचे जीवन जीने के लिए, प्रभु में विश्वास करके जीने के लिए विश्वास मिलता है। And God helps wonderfully His people. और परमेश्वर बड़ा अद्भुत रीति से अपने लोगों को मदद करता है। But there is a fourth faith. एक चौथा विश्वास भी है, That is doctrinal faith. और वो उपदेश का विश्वास है, सिद्धांत का विश्वास है। So we believe a lot of doctrinal truths. हम सिद्धांत के बहुत सारे सच्चाइयों को मानते हैं। We believe in the deity of Christ. हम मसीह के प्रभुत्व में विश्वास करते हैं। We believe in the existence of God. हम प्रभु है ऐसा विश्वास करते हैं। We believe in the authority of the Bible. हम बाइबल के अधिकार को मानते हैं। We believe in life after death. हम जीवन के मृत्यु के उपरांत के जीवन में विश्वास करते हैं। These are doctrines of faith. और ये सारे उपदेश हैं जो ये विश्वास के उपदेश हैं। When people ask us what do we believe what is recorded revealed in the word of God. जब लोग हमसे पूछते हैं आप क्या विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के वचन में जो लिखा गया है हम उस पर विश्वास करते हैं। That is another reason for us to study the Bible. और ये एक और कारण है बाइबल को अध्ययन करने का। What all things we have to believe? We have either without reading the Bible we will not know. हमको क्या क्या विश्वास करना है, ये बाइबल पढ़े बिना हम नहीं जान पाएंगे। So there are 4 kinds of faith. 4 प्रकार का विश्वास। There is intellectual faith. बौद्धिक विश्वास। Then saving faith. उद्धार का विश्वास। Then practical faith. फिर व्यवहारिक विश्वास। Then doctrinal faith. फिर उपदेश का विश्वास। But today we are going to emphasize on practical faith, how to live in faith as a child of God in this world. हम व्यवहारिक विश्वास के बारे में आज देखने वाले कि परमेश्वर के संतान होने के कारण कैसे हम व्यवहारिक विश्वास के साथ इस संसार में जी सकते हैं। After your salvation, trusting in the Lord every day for everything what you need. उद्धार के बाद अपने हर एक जरूरतों के लिए मसीह में भरोसा रखना। There is a living Savior with you to help you and guide you in this life. एक जीविता उद्धार करता है जो इस संसार में आपका मदद कर सकता है। So God expects us to live by faith. परमेश्वर ये आग्रह करता है कि हम विश्वास के साथ जिए। So Paul said in Corinthians, 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. और 2 कोरिन्थियों 5:7 में पौलुस ने कहा कि हम विश्वास से चलते हैं, देख करके नहीं। When we are not able to see anything before us, still we trust in the Lord and God proves His faithfulness. जब हमको सामने कुछ भी नहीं दिखता है, फिर भी हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं और परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को प्रदर्शित करता है। Now we will see the second word, hope. दूसरा शब्द को हम देखेंगे, आशा। We'll read 2 verses. हम 2 आयतों को पढ़ेंगे। Romans chapter 8 verse 24 and 25.
रोमी 8 का 24 और 25। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। So we are saved in this hope. हम इस विश्वास में बचाए गए हैं। So in the moment we got saved, God gave us this hope also. जिस क्षण हमारा उद्धार हुआ है, प्रभु ने हमें ये आशा दिया। Look at the thief on the cross. उस क्रूस पर के उस चोर को देखिए। And he trusted in the Lord Jesus Christ and prayed like this, Lord, remember me when you return in your kingdom. वो मसीह पर विश्वास किया और उसने ऐसा प्रार्थना किया कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आएगा तो मुझे स्मरण करना। The Lord replied back, today you shall be with me in the paradise. प्रभु ने उसको जवाब दिया कि आज तू मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। So with that he received a hope. He could die in hope. उसके कारण उसे वो विश्वास मिला और उस विश्वास में वो मर पाया। What is Christian hope? मसीह विश्वास क्या है? Knowing where we are going from this world or where we will be after this life. ये इस बात की जानकारी कि इस जीवन के बाद हम कहाँ रहने वाले हैं। And this only true believers know. और ये सिर्फ सच्चे विश्वासी जानते हैं। We live in a very hopeless world. हम आशा रहित संसार में जीते हैं। So one person said there are two groups of people in the world. एक मनुष्य ने ऐसा कहा कि इस संसार में दो झुंड के लोग हैं। People who go to a hopeless end. लोग जो आशा रहित अंत की ओर जाते हैं। और endless hope. या होप का। ओके, एक ऐसा आशा जिसका अंत नहीं है। So I'll say it again, either going to a hopeless end or endless hope. मैं फिर से कहता हूं, या तो वो अनंत आशा की ओर जा रहे हैं या आशा रहित बनकर जी रहे हैं। Okay, English it will be more beautiful. Hindi may not be that much clear. Here again this, either a person is going to endless hope or person is going to hopeless end. या तो मनुष्य अनंत आशा में की ओर जा रहा है या फिर निराशाजनक अंत की ओर जा रहा है। So the moment we accept Christ, we receive a hope. जिस क्षण हम मसीह को ग्रहण करते हैं, हमें ये आशा मिल जाता है। Let death come anytime, we know where we are going. मृत्यु किसी क्षण भी आ जाए, हमें मालूम है हम कहाँ जा रहे हैं। So Paul reminded the first Thessalonians in the first Thessalonians chapter 4. तो प्रेरित पौलुस ने पहले थिस्सलुनीयों में वहां के विश्वासियों को याद दिलाया 4थे अध्याय में। Verse 13 he said, don't be sorrowful like people who have no hope. हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हो अज्ञान रहो। I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. हे भाइयों, हम नहीं चाहते हैं कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। So people without hope will be greatly sorrowful at the departure of their relatives. लोग जिनके भीतर आशा नहीं है वो अत्यंत शोकित रहेंगे उनके प्रियजन जब चले जाते हैं। But people those who have hope, their sorrow will be reduced. लेकिन जिनके भीतर विश्वास है उनका शोक कम रहता है। One Kerala MLA, he is a Hindu man. एक केरला का एमएलए जो कि एक हिंदू मनुष्य है। He came to one of our funerals. एक
हमारे दफन विधि में अंतिम संस्कार में वो आए, So he was given few minutes to say something. तो उनको बोलने के लिए थोड़ा समय दिया गया। Then he said like this, तो उसने इस प्रकार से कहा, you people believe in the Bible, तुम लोग बाइबल में विश्वास करते हो, you are people who have hope, तुम आशा वाले लोग हो, so you don't need to be sorrowful like the other people. तो इसलिए अन्य लोगों के समान आपको शोकित होने की जरूरत नहीं है। Understand that he is a Hindu man. ये याद रखिए कि वो एक हिंदू मनुष्य है। He is referring to believers, you are people with hope, so that वो विश्वासियों वो विश्वासियों को देख करके कह रहा है, तुम आशा वाले लोग हो। so we need to know whether we have a hope or not in this life. तो हमें ये जानना जरूरी है कि इस संसार में हमारे पास विश्वास है कि नहीं। So if you are a born again Christian, trusted in the Lord Jesus Christ, God gave you this gift of hope also. और यदि आप पुनः जन्म पाए हुए विश्वासी है, तो प्रभु ने यह दान भी आपको दिया है, और वो है आशा। So we know as believers what will happen after this life. हम विश्वासियों को पता है कि जीवन के बाद क्या होने वाला है। When a believer dies, what happens? जब एक विश्वासी मर जाता है तो क्या होता है? His body goes to the earth, but his spirit goes to the very presence of Christ. उसका शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उसका आत्मा मसीह की उपस्थिति में चला जाता है। Paul says in 2 Corinthians 5:8, absent from the body and present with Christ. दूसरा कोरिन्थियों 5:8 में प्रेरित पौलुस कहता है कि शरीर में अनुपस्थित पर आत्मा में प्रभु के साथ उपस्थित। This is for the believers. ये विश्वासियों के लिए है। How do we know all these things? What is there after death? हमको ये सब कुछ कैसे मालूम है कि मृत्यु के उपरांत क्या है? There is only one source for us to know these things. ये सब जानने का स्रोत सिर्फ एक ही है। That is the word of God, the Bible. वो परमेश्वर का वचन है, ये बाइबल है। If we don't know what the Bible says about life after death, we will be ignorant like other people in the world. और यदि हमें नहीं मालूम कि बाइबल क्या बताता है मृत्यु उपरांत जीवन के बारे में, तो अन्य लोगों के प्रकार हम भी रहेंगे। But the Bible very clearly teaches that we have hope and we know what is going to happen after this life. बाइबल बड़े साफ रीति से हमें सिखाता है कि हमें आशा है और इस जीवन के बाद क्या होने वाला है। So immediately what is going to happen in our faith, our hope is concerned. तो जहां तक हमारा विश्वास है, तुरंत क्या होने वाला है? The second coming of Christ, second coming of Christ. मसीह का दोबारा आगमन। Jesus is coming back to take us to heaven. यीशु मसीह हमें स्वर्ग लेके जाने के लिए वापस आने वाला है। That is our great hope. और ये हमारा बड़ा आशा है। So it is mentioned in the Bible, it's a blessed hope, it is a living hope. और बाइबल हमें ये बताता है कि ये अनुग्रहित आशा है और जीवित आशा है। So believers received this hope. As a result, even when death happens in our own homes, we can be less sorrowful. ये विश्वासियों को ये आशा मिला है, और उस कारण से यदि घर में मृत्यु होती भी है तो हमारा शोक कम होता है। So that 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 onwards, Paul is teaching what is our hope of the future. पहला थिस्सलुनीय 4 अध्याय 13 से प्रेरित पौलुस ये सिखा रहा है कि भविष्य के बारे में हमारा आशा क्या है। When Jesus returns, what all will happen? जब यीशु मसीह वापस आएगा तो क्या क्या होगा? All the dead in Christ shall rise. मसीह में जो कोई मरे हैं वो जी उठेंगे। All the believers will get changed. सारे विश्वासी रूपांतरित हो जाएंगे। Then together they will go to meet the Lord in the air and to the very house which is being promised. और दोनों एक साथ प्रभु से मिलने के लिए
स्वर्ग चले जाएंगे और उस स्थान में जो प्रभु तैयार कर रहा है। Oh, compared to other people in the world, Christians are supposed to be more happy people. तो इस संसार के लोगों से तुलना किया जाए तो मसीही ज्यादा खुश होने चाहिए। The reason is that we have a hope. और उसका कारण ये है कि हमें एक आशा है। This life is temporary. This will come to an end very fast. ये जो जीवन है क्षणभंगुर है और ये तुरंत तुरंत समाप्त हो जाएगा। All our difficulties, problems, burdens will come to an end. We will be going to a place where none of these problems will be there. हमारे जीवन की सारी कठिनाई और परेशानियां समाप्त हो जाएगी और हम ऐसे स्थान में जाएंगे जहां पर ये सारी परेशानियां हमसे दूर रहेगी। Now the third blessing we see here is the love God has given us. और तीसरा जो आशीष हम यहाँ पाते हैं वो है जो प्रेम प्रभु ने हमें दिया है। We'll read one verse, then you will understand. 1 John 4:19. एक आयत को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। पहला यूहन्ना 4:19। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। God loved us. In response to that, now love arises from our heart. प्रभु ने हमसे प्रेम किया और इस कारण से प्रेम हमारे हृदय से अब निकलता है। One of the response we can give to God for His love is love Him back. एक प्रतिक्रिया जो हम प्रभु से या प्रभु के प्रेम के कारण दिखा सकते हैं वो ये है कि हम उससे प्रेम करें। It is God who loved us first. God took the initiative. प्रभु ने हमसे पहले प्रार्थना किया, प्रभु ने उसका चेष्टा किया सबसे पहले प्रेम किया और उसका चेष्टा प्रभु ने किया। और when we were unlovable, He loved us. जब हम प्रेम के योग्य नहीं थे तब उसने हमसे प्रेम किया। Then He put something in His nature in us, that is loving nature. और फिर उसने हमारे अंदर वो स्वभाव दिया जो कि प्रेम करने वाला स्वभाव है। So because this love we received, we love God more than everything else in the world. क्योंकि ये प्रेम हमने पाया है इसलिए हम प्रभु से अन्य चीजों से ज्यादा प्रेम करते हैं। There are 4 kinds of love God expects from every believer. हर एक विश्वासी से प्रभु 4 प्रकार का प्रेम इच्छा रखता है। First one, love your God with all your heart, all your soul, all your strength. सबसे पहले अपने प्रभु से अपने पूरे मन से, पूरे ताकत से और पूरे हृदय से प्रेम करो। Okay. Second is we have to love His word. दूसरा है हमें उसके वचन से प्रेम करना है। And John 14:21 we read like this: If you love me, you will love my commandments. यूहन्ना 14:4 में हम ऐसा पढ़ते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 14:21. 14:21 में हम पढ़ते हैं। So we will love the word of God. तो हम प्रभु के वचन से प्रेम करेंगे। The Bible become very, very precious to us. बाइबल हमारे लिए एकदम बहुमूल्य बन जाता है। One of the major change which happens in a Christian when he accept Christ as his nominal Christian, accept Christ as his savior, his love for the word of God suddenly increase. एक साधारण मसीह के जीवन में जो परिवर्तन आता है जब वो मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है वो ये है कि अचानक से परमेश्वर के वचन के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ जाता है। So start studying, reading the word of God. इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना और सीखना शुरू करें। So how much we love the word of God? That is the second question. परमेश्वर के वचन से हम कितना प्रेम रखते हैं ये दूसरा सवाल है। Then John 15:12 Jesus said, यूहन्ना 15:12 में यीशु मसीह ने कहा,
As I loved you, love one another. जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। We love God's people or God's church. हम प्रभु के लोग और प्रभु की कलीसिया से प्रेम करते हैं। So that is the third love. ये तीसरा प्रेम है। We love God's people and God's church. हम परमेश्वर के लोग और परमेश्वर की कलीसिया से प्रेम करते हैं। Okay, the fourth, चौथा, 2 Corinthians 5:14. दूसरा कुरिन्थियों 5:14। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। So the love of God is compels us to share the gospel with others. परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है कि हम ये सुसमाचार औरों से बांटे। That is the love for the unsaved. जो उद्धार नहीं पाए हैं उनके प्रति प्रेम। So all this love God has put in our heart the moment we trusted Him. ये सारा प्रेम प्रभु ने हमारे हृदय में डाला है उस क्षण जब हमने उस पर विश्वास किया। These are some of the things by which you can check whether you are a true Christian or not. ये कुछ बातें हैं जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि सही में आप मसीह हैं या नहीं, जांच कर सकते हैं। Your love for the Lord, प्रभु के प्रति प्रेम, then love for His word, उसके वचन के लिए प्रेम, love for His people, लोगों के लिए, उसके लोगों के लिए प्रेम, then love for the unsaved. और जो उद्धार नहीं पाए हैं उनके प्रति प्रेम। Why we share the gospel to the unsaved people? हम सुसमाचार क्यों लोगों में बांटते हैं? We love them because they are human beings, they have a precious soul. हम उनसे प्रेम करते हैं, वो मनुष्य है और उनके भीतर एक बहुमूल्य आत्मा है। We want to tell them that Jesus can save them and take them to heaven. हम उनको ये बताना चाहते हैं कि यीशु उनको बचा सकता है और उनको स्वर्ग लेके जा सकता है। This is not preaching a religion. और ये धर्म का प्रचार नहीं है। This is preaching about their salvation. ये उनके उद्धार का प्रचार है। This we do because we love them. और ये हम करते हैं क्योंकि हम उससे प्रार्थना करते हैं। That's why missionaries came in great number to this land. और इसीलिए मसीही सेवक इस धरती पर बहुत आयत से आए। They went to China, Japan, Russia, African countries and various islands in the world with this reason. They had love for the souls. और ये जो प्रचारक थे ये चाइना गए, जापान गए, अफ्रीका गए, क्योंकि उनको खोए हुए आत्माओं से प्रेम था। So today when we share the gospel, we need to know that is being done out of great love which is there in our heart for others. और आज जब हम सुसमाचार बांटते हैं तो हमें ये याद रखना है कि ये जो हमारे भीतर अत्यधिक प्रेम है दूसरों के लिए उसके कारण से है। So God gave us these three more blessings in the moment we trusted in the Lord. ये 3 आशीषें प्रभु ने हमें दी उसी क्षण जब हमने उस पर विश्वास किया। Faith to live our Christian life after our salvation. उद्धार के बाद अपने मसीह जीवन को जीने के लिए विश्वास। Secondly, to have a great hope in our life about the future. और दूसरा हमारे भविष्य के बारे में एक बड़ी आशा। Then there is great love given to us in our heart which can be revealed to people and to God at different circumstances. और एक महान प्रेम हमारे भीतर दिया गया है जो प्रभु के प्रति और लोगों के प्रति अलग-अलग परिस्थितियों में दिखाया जा सकता है। May the Lord bless these words. प्रभु इन वचनों को आशीषित करे।